हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग बेसिस एंड डायमेंशन। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शो दैट इफ टू वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस V over field F are linearly dependent, then one of them is scalar multiple of the other. So let us take two vectors u comma v be two linearly dependent vectors. So अगर आपके पास ये linearly dependent vectors हैं तो by definition there must exist two scalars not all zero such that linear combination is 0. So therefore by definition there exist scalars a comma b not both 0 such that a times u plus b times v is 0. Linear combination is 0. So अगर आपके पास स्केलर्स नॉन ज़ीरो हैं और स्केलर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? फील्ड में. सो फील्ड जो है दैट फॉर्म्स ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. सो ए अगर नॉन ज़ीरो है तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इट बिलोंग्स टू फील्ड एफ. सो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a. सो वन multiplicative inverse a inverse also exist in field. So multiplying a inverse both sides, so what will we get? We get a inverse into a times u. इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा au minus b times v. So a inverse into a v प्री मल्टीप्लाई किया हमने a inverse से, a inverse into b times v. So a inverse into a is identity, that is 1. 1 also exists, multiplicative identity of field. So आपके पास आ गया 1 into u, again u के इक्वल ही आएगा, is equal to minus a inverse b times v. a inverse को हम लिख सकते हैं 1/a. So it is u is equal to minus b/a into v. So b/a is another scalar. So u is scalar multiple of v. Clear? Now let us take if b is non-zero because we have taken not both zero. तो दोनों में से एक non-zero होगा. अगर a non-zero है तब भी u scalar multiple हो गया v का. Let us check अगर b non-zero है तो again with the same arguments b inverse exist. Pre-multiply with b inverse both sides. What will we get? We get v is equal to minus b inverse time a into u. So it is minus a/b into u. So v is scalar multiple of u. So that is all, that if we have two linearly dependent vectors then they are scalar multiple of each other. Next question is show that the set. अब यहाँ पे सेट में किस तरह के वेक्टर्स हैं आपके पास? एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, x प्लस 1 is linearly independent set of vectors in a vector space of all polynomials over the field of real numbers. So we have to prove that this set is linearly independent set of vectors. So अगर ये linearly independent set of vectors हैं तो there must exist scalars such that all scalars should be 0. So हमने scalars, इनके associated scalars निकालने हैं और उनको क्या प्रूव करना है? They are 0. अगर वो 0 आते हैं then only this set is linearly independent set. So let us take scalars a b c belongs to field of real numbers. Scalars तो field में exist करेंगे such that linear combination of this is 0. So a times the vector x cube minus x plus 1 plus b times the vector x cube plus 2x plus 1 plus c times the vector x plus 1 is equal to 0. अब हमने क्या किया? x cube की टर्म्स को कंबाइन कर लिया. x cube का कोफिशिएंट a है, यहाँ से b है तो इट इज़ a प्लस b टाइम्स x क्यूब. अब यहाँ से x के कोफिशिएंट ले लो, दिस इज माइनस a प्लस 2b प्लस c इंटू एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. 0 पॉलिनोमियल है ये. 0 पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म. सो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करेंगे. दोनों पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगे? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे. तो एक्स क्यूब का a प्लस 1 और यहाँ पे 0. सो a प्लस बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज माइनस a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 और थर्ड a plus b plus c is equal to 0. So let us write this in the matrix form.
क्लियर। सो इसको करने के भी दो वे आउट्स हैं, या तो आप इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालो और वहाँ से शो कर दो कि ऑल ए बी सी आर जीरो, देन देयरफॉर दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और आप क्या कर सकते हो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो ऑफ द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसके डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो प्रूव कर दो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सोल्यूशन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स जीरो सोल्यूशन। ऑल द स्केलर्स दैट इज ए बी सी आर जीरो। सो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स मेथड की हेल्प ली है। इसको किस फॉर्म में लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप में लिखा, और हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। सो इट इज़ 1 1 0, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 3 विच इज़ नॉन जीरो। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देयरफॉर 1 2 3 मस्ट हैव अ trivial solution, that is a b c all are 0. Therefore this set of vector is linearly independent set. Next is, if x1 x2 x3 up to xr is linearly independent system of n cross 1 column vectors and A is n cross n singular matrix, then show that ax1 ax2 axr are also linearly independent. Clear? सो हम इसको कैसे करेंगे, हमने वही प्रूव करना है। अगर किसी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केलर्स हैं उनको ज़ीरो प्रूव करना है, सच दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन इज ज़ीरो। क्लियर? सो लेट अस टेक द स्केलर्स एंड देयर लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो। सो a1 a2 a3 अप टू ar आर दी स्केलर्स सच दैट a1 times ax1 plus a2 times ax2 plus ar times axr equal to 0, and we have to prove that this set is linearly independent, means these all scalars are 0. So अब हमने क्या किया, ये आपके पास ax1 हमने a को बाहर ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया ax1 के साथ। अब a को कॉमन ले लिया, a2 x2 a इंटू xr ar xr। क्लियर? अब a कॉमन आउट ले लो सारे में से, और इसको हम कैसे लिख देंगे, a टाइम्स a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सो ऑन प्लस xr इज इक्वल टू 0। नाउ a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर a इन्वर्स एग्जिस्ट, सो वी कैन प्री मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स। सो वी हैव a इन्वर्स इंटू a टाइम्स दिस। सो व्हाट इज a इन्वर्स a, that is identity matrix, multiply करोगे तो you will get the same. So we have ax1 plus a2x2 plus arxr equal to 0. बट ये जो आपके पास सेट था x1 x2 up to xr, ये किस तरह का सेट था, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास स्केलर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो। तो यहाँ से सिंस x1 x2 अप टू xr इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, देयरफॉर ऑल स्केलर्स शुड बी ज़ीरो। तो सारे स्केलर्स ज़ीरो हो गए। तो अगर सारे स्केलर्स आपके पास ज़ीरो हो गए तो क्या हो गया, ये वाला जो सेट आपने स्टार्टिंग में लिया था ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सो आपके पास ax1 ax2 अप टू axr इज ऑल्सो अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको ये होगी कि आपके पास ये तो जो आपके पास x1 x2 x3 अप टू xr है, ये तो n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर्स हैं। व्हाट अबाउट दीज, ये क्या होंगे। अब a जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है। आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, x1 x2 xn। x1 क्या है, n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर, n क्रॉस 1 n रोज 1 कॉलम। सो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वो भी n क्रॉस 1 एक कॉलम वेक्टर ही आएगा। सो आपके पास कॉलम वेक्टर को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, ax1 इज़ अ कॉलम वेक्टर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसको आप अंदर कैसे ले लोगे। स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे स्केलर्स को, तो आप सिंपली लिख सकते हो दिस, चाहे आप स्केलर से पहले उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या आप ax1 को मल्टीप्लाई करो फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल बी द सेम। सो आप इससे करके देखना। आप कोई छोटा एग्जाम्पल लो जिसमें n क्रॉस 1 को कोई भी 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स ले लो और a को 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले लो। सो उससे आपको ये इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्रूव दैट द नॉन जीरो रोज इन एन इक्लन मैट्रिक्स फॉर्म्स अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सो हमने अब ये प्रूव करना है
कि आपके पास जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज होंगी इक्लन मैट्रिक्स में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करती हैं। अब इक्लन मैट्रिक्स आपने पहले की हुई है। इक्लन मैट्रिक्स कैसे होती है, आप रैंक जब निकालते थे तब आप उसको किस फॉर्म में लाते थे, इक्लन फॉर्म में। सो लेट अस स्टडी नाउ, इफ इक्लन मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स देन सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरोज, द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज ज़ीरो। कोई नॉन ज़ीरो रो आपको मिलेगी ही नहीं जब वो ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। तो देयरफॉर हेंस इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई उसमें वेक्टर ही नहीं होगा, ठीक है, खाली है, एम्प्टी सेट है। लेट अस कंसीडर द इक्लन मैट्रिक्स ए इन विच ऑल द रोज आर ऑफ, इन विच नॉट ऑल द रोज आर ज़ीरो, जिसमें सारी रोज ज़ीरो नहीं है, कुछ रोज ज़ीरो हैं, कुछ नॉन ज़ीरो हैं। सो लेट R1 R2 अप टू RM दे आर ऑल नॉन ज़ीरो रोज और बाकी सारी ज़ीरो रोज हैं। अब ये इक्लन फॉर्म है तो इसमें ये किस तरह की होंगी, these are all non-zero rows having non-zero leading element in such a manner that all the elements below the leading element of a particular rows are all zero. सो इक्लन फॉर्म है तो R1 किस तरह की होगी, वैसे इक्लन मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें उसमें क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट आपके पास दिस इज़ 1 0 1 2 3, अगर ऐसे लिखें तो इसमें फर्स्ट एंट्री 0, फिर 1 2 0 0 ले लो, या फिर 1 2 4 ले लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 0 2 1, फिर 0 0 0 2। तो किस तरह की आ गई आपके पास इक्लन मैट्रिक्स, फर्स्ट यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट नॉन ज़ीरो, उसके नॉन ज़ीरो, उसके बाद आपके पास ये सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो फर्स्ट, फिर सेकंड में देखो दिस एलिमेंट इज़ ज़ीरो, उसके बाद सारे नॉन ज़ीरो, थर्ड में देखें फर्स्ट 2 एलिमेंट इज़ नॉन ज़ीरो, उसके बाद सारे ज़ीरो, फोर्थ रो में देखें तो फर्स्ट 3 एंट्रीज आर ज़ीरोस, बाकी नॉन ज़ीरो। सो दिस इज़ ऑफ द टाइप इक्लन मैट्रिक्स। सो आप क्या कर रहे हो, लीडिंग एलिमेंट जो है, अब ये 2 है, ये सेकंड रो है, तो इसका जो लीडिंग सेकंड आपके पास कॉलम है उसकी एंट्री नॉन ज़ीरो है, बाकी इससे जो प्रीसीडिंग वाली एंट्री है वो ज़ीरो है। अब ये थर्ड कॉलम जो है, इसमें थर्ड रो जो है, थर्ड कॉलम में जो एंट्री है वो आपके पास नॉन ज़ीरो है, बाकी ये जो 2 एंट्रीज हैं ये ज़ीरो हैं। इसी तरह तो हमने क्या लिखा है, सच दैट in such a manner that all the other elements below the leading element, below the leading element means अगर second leading है, second row leading है तो उसके below मतलब A1 वाली जो एंट्री है वो 0 होगी, थर्ड में उससे पहले वाली 1 और 2 0 होंगी, आर ऑल 0, जैसे ये लिखा हुआ है R1 में सारी नॉन ज़ीरो ली है, लीडिंग एंट्री फर्स्ट है, इससे पहले कोई है ही नहीं, तो ऑल आर नॉन ज़ीरोज़। अब लीडिंग एंट्री सेकेंड रो में A22 है तो उससे पहले वाली 0 ले ली, थर्ड में A33 इज़ द लीडिंग एंट्री तो उससे पहले वाली सारी 0 ले ली, R4 में R4 इज़ द लीडिंग एंट्री, उससे पहले वाली सारी क्या ले ली, 0। अब इसी तरह RM में जो है लीडिंग एंट्री इज़ AMM, तो उससे पहले वाली जो प्रीसीडिंग एंट्रीज हैं वो सारी क्या होंगी, 0। सो इस तरह की जो मैट्रिक्स बनेगी वो इक्लन फॉर्म में बनेगी। सो सपोज हमने क्या प्रूव करना है, जो ये नॉन ज़ीरो रोज़ आपको मिली हैं उसके बाद जितनी भी रोज़ होंगी वो सारी ज़ीरो हैं, RM जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, और आपने ये प्रूव करना है कि ये जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं यही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। सो आप क्या करोगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे, A1 R1 A2 R2 A3 R3 up to AM RM is equal to 0 such that A1 A2 AM are all scalars and we want to prove that these scalars are 0 to prove that R1 R2 up to RM are linearly independent vectors. So let us take R1 की वैल्यू डाल दो, so A1 A11 A12 up to A1n, so R2 की वैल्यू डाल दी 0, A22 A23 अप टू A2n और RM की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे। अब अगर हम इसको कंबाइन करें, ऐड करना शुरू करें, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, A1 इंटू A11, ये सारी 0, इसके बाद वाली सारी 0, सो A की टर्म आएगी A11 इंटू A1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब A11 इज नॉन ज़ीरो, हमने इसी तरह लिया था कि जो लीडिंग एंट्री है वो नॉन ज़ीरो है, तो फिर 0 क्या हुआ, A1 0 हो गया, so A1 into A11 is 0, so therefore A1 is 0 as A11 is non-zero। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या आएगी, A1 into A12 प्लस A2 into A22, उसके बाद सारी ज़ीरोज़ होंगी, so you have this as the second entry।
यहाँ पे A1 तो आप प्रूव कर चुके हो, पहले ही 0 है। अब A22 इज़ द लीडिंग एंट्री, वो नॉन ज़ीरो आपने लेट किया हुआ है, उससे पहले वाली 0 है, तो A2 क्या आ गई 0, बिकॉज A22 इज़ नॉन ज़ीरो। सो A22 इज़ नॉन ज़ीरो, देयरफॉर A1 इज़ 0। Proceeding like this, we have all the scalars up to AM as 0. Since all the coefficients of AM are 0, therefore hence R1, R2 up to Rm is linearly independent set. So this completes, और ये एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स इक्वलन फॉर्म में है तो जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो सारी क्या होंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट फॉर्म करेंगी, और यही रोज़ के लिए ट्रू है तो वो कॉलम्स के लिए भी ट्रू होगा। शो दैट द वेक्टर्स 1 1 2 4, 2 -1 -5 2, 1 -1 -4 0 and 2 1 1 6 आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसको भी करने के 2 वे आउट्स हैं। यू कैन टेक A टाइम्स दिस वेक्टर V1 प्लस A2 टाइम्स दिस, A3 टाइम्स दिस, A4 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड solve the value of A1, A2, A3 and A4. If they are all 0, then it is a linearly independent set, otherwise linearly dependent set. Otherwise you can construct a matrix whose columns are given by this vectors. So हमने क्या किया, 1 1 2 2 4, ये आपके पास वेक्टर जो है मैट्रिक्स बनाई, उसके कॉलम्स लिख लिए। 2 -1 -5 2 कॉलम्स के टर्म्स में, 1 -1 -4 0 कॉलम, 2 1 1 6। और अब इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सो जब हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके आएंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म मीन्स 1 आ गया आपके पास, फिर यहाँ 0 बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, 0 बनाने के बाद नीचे 0 0 0। जब आपने इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस किया तो आपके पास ये ही 2 टर्म्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो आई। ठीक है, बाकी 2 टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई। सो आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, जैसे आपने पहले भी निकाला है। सो इन अ रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, सो विच इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। वो कितने थे, 4। नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4, 1 2 3 4 एंड the rank of matrix is 2. So therefore the given vectors are linearly dependent vectors. ठीक है, इसमें जो linearly independent vectors हैं ये 2 ही हैं, 4 जो हैं वो आपके पास क्या हो गए, linearly dependent vectors. So हमने जब भी ये शो करना है कि सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो हम निकाल लेंगे रैंक। रैंक कैसे निकालेंगे, बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। और रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जब आप रैंक निकाल लोगे, इफ़ रैंक इज़ लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स मीन जो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं वही कॉलम्स होंगे। अगर 4 वेक्टर्स हैं तो 4 ही कॉलम हुए उस मैट्रिक्स के। तो इफ़ द रैंक इज़ लेस देन दोज गिवन वेक्टर्स, देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। और जो आपके पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज बनी हैं वो क्या होंगे, आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। So this is all about some numerical based on linearly dependent and independent vectors. So thank you for watching the video.